Good morning, students. Today I am going to deal with the different forms of power sharing in detail. So, at first, we'll have to study about the horizontal power sharing. Now, look, why it is called horizontal? It is called horizontal because all the three levels are expected to have the same power, not more or not less. So we'll deal here with each of one in detail. Now, at first we will deal with legislature. Legislature means the power to make laws. For example, now what constitute the legislature? Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly, Legislative Council, all of them together constitute the legislature. They make laws for us. Their jurisdiction is confined to making laws. They cannot do anything other. They can just make laws. Now, all those people, I mean the MPs and the MLAs who sit in the legislature, they are called legislators. So the legislature is just confined to making laws for the country. They have to follow the law. At the same time, they have to ensure that the law is followed by them too. No one is above the law. The second thing is executive. Now look, defining executive is a little bit difficult. Not defining, but looking at their roles. For example, in our country, India, what happens is that some people have got the role of legislature also and the role of executive also. Now, if we are going to define executive, then among the executive are the political executive and the non-political executive. So, what are the political executive and the non-political executive? The political executive refers to the leaders or the politicians or the ministers. And the non-political executive refers to the bureaucrats. In other words, you can have different terms for them. For example, political executive, they are called temporary executive. Why they are called temporary executive? Because most of them, they are just for 5 years, for 6 years, for a limited period of time, they have been given that role. The non-political executive are bureaucratic people. The bureaucratic people refers to the officials who qualify and they clear their exams and come into the government, they form the part of the government, and these people, they retire only after their retirement date, that is just 65 years or 62 years, whatever is there. So political executive and non-political executive. Most of the times we take executive as the bureaucratic people. ज़्यादातर जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो दिमाग में पुलिस और प्रशासन और ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन इसमें कौन शामिल है? इसमें मंत्री भी शामिल है, एमएलए भी शामिल है, क्योंकि उनको भी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नो अबाउट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज. Who is the head? The head is the minister. जितने भी मंत्रालय हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, और इनका हेड जो होता है वो कौन होता है? वो मिनिस्टर होता है. उसके नीचे सेक्रेटरी होता है. सेक्रेटरी एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ये दोनों मिलके चलाते हैं एक मंत्रालय को. तो एक मंत्रालय को मंत्री भी मिलके चलाता है, इसलिए जो मंत्री है वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. उसको ऑफिसर्स भी चलाते हैं, इसलिए ऑफिसर भी क्या है? वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव में दो हुए, एक ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, या आप उसको नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहें, आप ये उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहें. So then the non-political executive, the political executive are the people who are the ministers. अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो मंत्री का रोल होता है, मिनिस्टर्स का जो रोल होता है, वो एग्जीक्यूटिव का भी है और लेजिस्लेचर का भी है. क्यों ऐसा है? तो थोड़ा सा हम अपने संविधान पे जाएंगे. मंत्री वही व्यक्ति हमारे यहाँ पे बन सकता है, कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री या कोई गन्ना मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो वो सदस्य हो, वो हमारे संसद का सदस्य हो या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो. अगर नहीं भी है, उसको मंत्री बना दिया जाता है
तो रूल है कि 6 महीने के अंदर उसको क्या करना होगा, उसको राज्यसभा का या लोकसभा का ये नहीं तो अगर केंद्र में वो मंत्री बनना चाहता है तो, और नहीं तो उसको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनी मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो एंड इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। तो ये हमने इनको देखा, ये क्या है। अब आते हैं जुडिशरी पे। तो जुडिशरी क्या है? ऑल द जजेस, all the public prosecutors, all the bar members, not the bar members, means they all constitute the judiciary. All the judicial officers, public prosecutors and the judges, they all constitute the judiciary. So what is the role of the judiciary? The role of the judiciary is to give punishment to the guilty according to the constitution. They too are not above the constitution. एक जज के अपने निजी विचार क्या है नहीं है उसके फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसे जो भी फैसला देना है वो संविधान के अनुसार देना है। हाँ, जुडिशरी एक मामले में पावरफुल है क्योंकि संविधान में लिखा गया है दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी कानून पारित होता है, ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये इनमें मींस कैसे पावर, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। ये तीनों को एक समान पावर दिया गया है और इसमें ध्यान रखा गया है कि एक के भी पास पावर हद से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये ध्यान रखा गया है कि पावर किसी के पास ज्यादा नहीं हो। तो जैसे आप देखते होंगे कि अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो उनको बहुत सारे नेता हैं जो जेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, बाहर छूट जाते हैं अलग बात है, लेकिन उनको जेल के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि संविधान और कानून सबसे सर्वोपरि है, वो ऊपर है, सुप्रीम है, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर वो गलती करेंगे तो उनको भी अंदर जाना होगा। दूसरे थोड़ा सा हम ये बताने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारी संसद कोई कानून बनाती है, तो संसद में बहुत बार जो पार्टी है वो अपना वोट बैंक के लिए कानून बना देती है। उसको मालूम है कि ये कानून टिकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कानून बना देती है। वो कानून चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो ये देखेगी ये कानून संविधान के अनुसार है या संविधान के विपरीत है। अगर संविधान के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट, एक कानून में टर्म है नल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, मतलब ये संविधान के विपरीत है और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए जरा सा, इसके बाद भी भारत के संसद के पास पावर है कि अगर भारत के संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाता है तो फिर संसद ऐसा कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर सकती है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है भारत में क्योंकि जो लोग चुन के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो जज चुन के नहीं आते हैं, पब्लिक मूड क्या है उनको उससे क्या मतलब, लेकिन जो लोग चुन के आते हैं संसद में बैठते हैं तो उनको सर्वोपरि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जुडिशरी पे। तो जुडिशरी में भी आपको ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे जजेस ने किसी से पैसा लेके बेल दे दिया, जमानत दे दिया और उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ता है, जेल की हवा खानी पड़ती है। ठीक है, एक जज ने अपने बेटी और इसको मारा था, सेशन कोर्ट का जज था वो, लोअर कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट का जज था वो, तो उसको फांसी पे लटकाया गया। एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है पूरे भारत में। जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात रही तो अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं आया है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाना पड़े, क्योंकि जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे ऐसे आरोप लगते हैं और उनको हटाने की नौबत आती है तो हटाने से पहले ही वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं।
तो इसलिए भारत के इतिहास में अभी भी जो संवैधानिक तरीका है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो भारत में तरीका है वो राष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका होता है बिल्कुल उसके तरह सेम है। ठीक है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको हम महाभियोग कहते हैं। तो आज तक भारत के इतिहास में ना किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है, ना ही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि जजेस जो चाहे सो कर सकते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पावर है, ऐसा भी नहीं है। वो भी अगर कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। नो वन इज अबव द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ये डिसाइड हुआ। तीसरा है एग्जीक्यूटिव में। आपने एग्जीक्यूटिव में देख लें, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स तो बहुत सारे जेल जाते हैं या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ होता है। तो कोई कानून के ऊपर नहीं है। अगर कोई भी कानून के ऊपर रहता तो ऐसा नहीं होता कि जजेस को भीतर जाना पड़ता। अगर कोई जजेस को भीतर नहीं जाना पड़ता, अगर कोई कानून के ऊपर होता तो नेता जेल के भीतर नहीं जाते, अगर कोई कानून के ऊपर होता तो ऑफिसर्स जेल के भीतर नहीं जाते। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि एक का पावर अगर ज्यादा बढ़ने लगे तो दूसरा उसके पावर को चेक करे, उसके पावर को कंट्रोल में लाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। दिस थ्री लेवल्स, हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा गया है क्योंकि तीनों सेम प्लेन, जो बच्चे मैथ्स को पढ़े होंगे उन्होंने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उनको प्लेन का मतलब समझ में आता होगा कि प्लेन क्या कहते हैं। तो एक ही प्लेन में तीनों को रखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत बाद में इवॉल्व किया। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये बहुत बच्चों को याद होगा कि उनको मैंने क्लास 9 में पढ़ाया होगा। वो क्लास 9 में जॉन लॉक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ाया होगा। तो जॉन लॉक ने ही कहा था कि पावर का 3 भागों में बंटवारा हो जाना चाहिए। पहले के समय में तीनों पावर राजा के हाथ में होता था, तो राजा निरंकुश हो जाता था, एब्सोल्यूट हो जाता था, वो बेलगाम हो जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं फेडरल जो है, तो फेडरल बाद में थोड़ा इसका कंसेप्ट आया। फेडरल क्या है, क्यों हम लोग ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं? तो लेट अस सी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज अबाउट रेस्पेक्टिंग योर डाइवर्सिटी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात ये है कि हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी देश में इतनी ज्यादा विविधता है अभी के समय में, जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर चालू हुआ तब से लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना और बसना बढ़ा। इस आने जाने और बसने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, कि इसके कारण जो है जहां पे पहले से डाइवर्सिटी नहीं थी वहां पे डाइवर्सिटी भी बढ़ी है, और डाइवर्सिटी के कारण थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, पहला इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम रिड्यूस करें कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन अमंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। मान लीजिए भारत 136 करोड़ लोगों का देश है, तो आप इसको एक जगह पे अगर 100 मंत्री भी रखते हैं तो आप पूरे भारत को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, या एक छोटे से भी देश की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल नेपाल की ही अगर हम बात करें, तो शायद उसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के भी देश को चलाने के लिए संभव नहीं है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। या 2 करोड़ को चलाने के लिए अगर आप 100 मंत्री भी रख दें फिर भी आप नहीं चला सकते हैं। तो इसका 2 पर्पस रहा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का। पहला रहा है वो डाइवर्सिटी को मैनेज करना, और दूसरा जो रहा है वो रहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक हर्डल्स आती थी उन एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को दूर कर देना। अब जरा सा हम लोग देखेंगे कि इसको वर्टिकल क्यों कहा गया है। तो ये पहले हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो हमारे पास हुआ वो है लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए ये वर्टिकल है, आप समझते होंगे वर्टिकल का मतलब।
तो एक्चुअली में ये एक ट्रिकल डाउन एक स्फीयर है, ठीक है। ट्रिकल डाउन क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बचा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर बचा वो लोकल गवर्नमेंट के पास, इसीलिए इसको वर्टिकल कहा गया है। तो इसमें ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, इसमें एक हायरार्की बनाई गई है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा जो है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी पहले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा जो है सो वो स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा जो है सो वो लोकल गवर्नमेंट। तो आप मिलाइए कि सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल अभी के समय में ड्यू टू कोरोना वायरस देयर इज अ लॉकडाउन, तो ये इस लॉकडाउन में किसने कहा कि पूरे देश को बंद करो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी तो उसके ये राज्य में ही लागू होगा, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की कहती है कि तुम खोल दो, हम लॉकडाउन हम हटाते हैं, और कल होकर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि लॉकडाउन लागू है, तो लॉकडाउन लागू होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का अपने तक सीमित है। लोकल गवर्नमेंट की भारत में दशा सही नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को अभी भी फॉर मोस्ट ऑफ देयर फंड्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में आप सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में पढ़ोगे, और जरा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि इसका स्टेटस क्या है। तो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है। इनको संवैधानिक मान्यता दी गई है, ठीक है। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया गया है ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों को क्या टैक्सेस होंगे, कौन किसके लिए कानून बनाएगा, ठीक है, किसके पास क्या शक्तियां हैं, ये सब अलग अलग कर दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो सिर्फ वहीं तक लागू होगा, लोकल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी, ठीक है, वो कानून बनाने की शक्तियां उनके पास भी है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी शक्तियां हैं। लोकल गवर्नमेंट मेनली बनाया इसलिए गया है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक आइडियम है, एक कहावत है, निप इन द बड। तो निप इन द बड का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम, ठीक है, वो नासूर है, नासूर से वो कैंसर बने उससे पहले ही उसको नासूर रहते हुए ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो लोकल गवर्नमेंट बनाने का यही उद्देश्य था कि जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको लोकल लोग ही बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रक्सौल में कोई घटना होती है तो पटना का ऑफिसर या पटना का नेता उस घटना को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है जितने अच्छे तरीके से रक्सौल का कोई नेता या कोई लोकल व्यक्ति इसको समझ सकता है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया कि गांव में पंचायती राज और शहर में म्युनिसिपैलिटी, ताकि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लोग, ठीक है, लोकल तरीके से और इन एफिशिएंट मैनर उसको सॉल्व कर पाए। तो ये रहा, इन सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 24 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो उसी दिन इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, म्युनिसिपैलिटी को और पंचायती राज को। 1992 में राजीव गांधी की उस समय सरकार थी, ठीक है। अब हम जरा पे आते हैं आपको सोशल ग्रुप्स के ऊपर। तो ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है उसमें। तीसरा जो है उसको समझना जरूरी है, और अभी के समय में इसको समझना बहुत जरूरी है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का लगभग दुनिया के सभी डेमोक्रेसीज में ये दोनों डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश संविधान में कहीं पे भी फेडरलिज्म नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं लिखने के भी पीछे कारण रहा है। हमारे संविधान में लिखा गया है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्यों नहीं लिखा गया इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स? फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कुछ ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बनस्पत। लेकिन यूनियन लिखने का मतलब ये है
भारत के संविधान में कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। जैसे अगर इमरजेंसी की अगर आप बात करें, जैसे ही अगर इस देश में इमरजेंसी अगर लागू होगा तो उस इमरजेंसी में आपको स्टेट गवर्नमेंट का नामो निशान खत्म, सीधे पावर पूरा का पूरा किसके हाथ में, पूरा का पूरा पावर आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। किसी स्टेट में आप क्या लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, ठीक है, आर्टिकल आप 352 का यूज करें, आप इमरजेंसी लगा दें, पूरा का पूरा उस स्टेट का पावर, उस स्टेट में कानून बनाने का पावर भारत के संसद में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अगर बिहार में लगा दिया जाए प्रेसिडेंट रूल, तो अगर बिहार के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े तो बिहार में नहीं बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा, वो भारत की संसद कानून बनाने लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है। थोड़ी सी भी स्टेट की स्थिति खराब होगी, पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो ये रहा, जैसे अब इस थोड़ा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम पहले क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट था, तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है सो वो खत्म हो गया। जैसे बेल्जियम पहले क्या था, बेल्जियम में वो अमेंडमेंट्स होने से पहले, संविधान में अमेंडमेंट्स होने से पहले वहां पे बेल्जियम में वो आपको यूनिटरी गवर्नमेंट था, एक देश में सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, वो पूरे देश को चलाती थी। लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके उसमें तीसरा नंबर पे जो अमेंडमेंट हुआ आपको याद होगा, उसमें कहा गया कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी that the state governments shall not be subordinate to the central government। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो बेल्जियम में ये हुआ। श्रीलंका ने ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को मना कर दिया, ठीक है। श्रीलंका इस बात को, उसने ना अपने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया और ना ही उसने ब्रेकअप किया अपने देश को इनटू प्रोविंसेस, ठीक है। तो इसका खामियाजा उसको 40 वर्ष युद्ध झेल के भुगतना पड़ा, वो हम देख सकते हैं। तीसरा है सोशल ग्रुप्स के बीच में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जिस भी देश में अगर किसी चीज सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में टकराव की स्थिति है, तो इसी चीज को लेके है कि भाई एक कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर है, दूसरी कम्युनिटी के पास पावर उतना नहीं है, कम है। एक कम्युनिटी के पास धन है, दूसरी कम्युनिटी के पास नहीं है। एक कम्युनिटी को एजुकेशन का लाभ पहले मिला है, दूसरी कम्युनिटी उसको ले रही है। आप अमेरिका से ही समझ लीजिए, अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में भी जो ब्लैक व्हाइट्स की स्थिति है, व्हाइट्स के पास वो ज़्यादा फॉरवर्ड है या उनके पास एजुकेशन का फायदा उनको ज़्यादा मिला है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ उनके पास ज़्यादा है। ब्लैक्स को आप कंपेयर कीजिएगा तो लगेगा कि ब्लैक्स के पास तो कुछ है ही नहीं। तो सोशल ग्रुप्स में क्या नहीं हो, सोशल ग्रुप्स में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जो पीछे छूट गया है उसको भी आगे लाया जाए। इसके लिए हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम की चीज बनाई गई। कहाँ पे ये आपको बनाई गई, वो आपको बनाई गई है आपको बेल्जियम में। तो ये बनाया गया क्यों, ताकि जो लिटरेचर से जुड़े मुद्दे हैं या लैंग्वेज से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है, या ट्रेडिशंस या कल्चर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें कोई एक दूसरे के मामले में ताक झांक ना करे। अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में आपको जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए गए हैं, ठीक है। ये महसूस हुआ संविधान बनाते वक्त कि भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं कि अगर जिनको बढ़ावा नहीं दिया गया, सरकार फ्रंट फुट पे आके अगर उनको बढ़ावा नहीं दे रही है, तो कभी भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो शुरू से अच्छे अशिक्षित थे, अशिक्षित ही रह जाएंगे, वो शुरू से पिछड़े थे, पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशंस दिए या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिए। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये एससी और एसटी को दिया गया है, ठीक है। ये स्टेट के चुनावों में भी होता है और ये आपको सेंटर के भी चुनावों में होता है, ठीक है ना। एमपीस के भी सीट रिजर्व है एससी एसटी के लिए और एमएलएस के भी सीट रिजर्व होते हैं एमपीस और एमएलएस के लिए। राज्यसभा में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता है और ना ही विधान परिषद में आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगा। पंचायत स्तर पे भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो लगा दिए गए हैं एक खास जाति के लिए, और उसमें भी आपको पंचायतों में मालूम होगा कि औरतों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है।
तो वो रिजर्व होता है कि यहाँ से इसी जाति के लोग खड़े होंगे, कैटेगरी जाति वाइज नहीं है, वो कैटेगरी वाइज है, जातियों को ग्रुप करके कैटेगरी बनाई जाती है, उसके अनुसार है। रिजर्वेशन दो प्रकार के हैं, एक जो लेजिस्लेचर में दिया जाता है, एक जो सरकारी नौकरी में मिलता है और स्कूल्स कॉलेजेस में मिलते हैं, सरकारी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के लिए रिजर्वेशन है ये 10 वर्ष के लिए है, इसको प्रत्येक 10-10 वर्ष पे बढ़ाया जाता है। अधिकतर लोगों को ये समझ में आने लगता है कि जो रिजर्वेशन मिला है वो मात्र 10 वर्षों के लिए मिला है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये जो है रिजर्वेशन जो मिला है वो आप जो नौकरी में रिजर्वेशन है या जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसका कोई समय सीमा नहीं है जब दिया गया, ठीक है, और ना ही बाद में बनाया गया है। समय सीमा जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के लिए रिजर्वेशन है उसी के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा देखिए क्यों किया गया है, गवर्नमेंट में सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सरकार में, सिविल सर्विस में, आर्मी में या जो भी पावर स्ट्रक्चर है किसी भी देश के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे एक ही समुदाय के लोग, उन लोगों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो, हद से ज्यादा वहां पे, और बाकी लोग उसमें शामिल नहीं हो। क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश में उत्पन्न होती है, जैसे हमने श्रीलंका के केस में देखा, तो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी कदम उठाए गए हैं। अमेरिका में भी जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, अमेरिका में ब्लैक्स को तो या जो वहाँ पे एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं उनको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से ऐसी व्यवस्था की गई है। चलिए हम आते हैं ये जो चौथा प्रकार का डिवीजन है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। जहां तक बात रही पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको लेकर समझने में देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, क्योंकि सरकार बनती है तो या तो एक पार्टी की बनती है, नहीं तो पार्टियों की बनती है। जैसे अभी के समय में एनडीए की सरकार है, सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है, रामविलास पासवान शामिल है लोक जनशक्ति पार्टी के, और अलग से समर्थन अकाली दल पंजाब की जो पार्टी है उनका है, ठीक है। तो ये उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी, और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होते रहता है। आज कोई किसी पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी। कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो मिलकर सरकार बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी में 20 से भी ज्यादा पार्टीज के सरकार में 20 से भी ज्यादा पार्टी शामिल थे, ठीक है। और हम लोगों ने 1989 से भी जो दौर देखा है, 1989 से जो है 2014 का भी दौर देखा है, जब देश में सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कोलिशन की सरकारें बनती थी। कोलिशन आपको मालूम होगा कि जब बहुमत पूरा नहीं हो पाता है या पूरा होने के बावजूद भी बहुत सारी पार्टीज जो है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में एक साथ आके मिलकर सरकार बनाती है, तो हम उसको गठबंधन सरकार कहते हैं या अलायंस कहते हैं, या हम उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी जो चीज हमें ध्यान देना होगा वो है प्रेशर ग्रुप्स को लेकर। प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप का मतलब है जो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए। अब जरा सा हम इस चीज को समझते हैं। आपने नाम सुना होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपने नाम सुना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का पूरे भारत में संगठन है। किसी डॉक्टर को आप मार दीजिए, जान से नहीं, हम नहीं कह रहे मारने के लिए, किसी डॉक्टर के साथ अगर किसी ने क्या कर लिया, कोई बदसलूकी कर लिया, पूरे डॉक्टर हड़ताल पे, वो अपने सरकार के सामने मांग रखेंगे, उसको सिक्योरिटी दो, उसको मुआवजा दो। मांग कौन रखेगा? उनका संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जरा किसी वकील के साथ आप बदतमीजी कर लीजिए, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों का सबसे बड़ा संगठन है, और वही एक संगठन है पूरे भारत में, अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप सबसे ज्यादा मजबूत है तो वकीलों का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। रक्सौल में भी बार काउंसिल है, वो ब्लॉक में। उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी उनका संगठन है। तो अगर आप कुछ भी वकीलों के साथ बदसलूकी होगी, पूरे वकील एक तरफ आ जाएंगे। आईएएस आईपीएस लोगों का भी अपना क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप है, उन्होंने भी अपने संगठन बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इनका काम होता है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, ठीक है, अपने हितों की रक्षा के लिए, या सरकार के सामने अपने मांग को जोरदार तरीके से रखना। सरकार अगर कुछ अगर उनको बातों को नहीं मानती है तो ये सड़क पे आके प्रदर्शन करते हैं, ठीक है।
तो भले ये सरकार में हिस्सा नहीं हो, लेकिन ये सरकार के डिसीजन को प्रभावित जरूर करते हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा है डील कर दूं, एनआरसी को लेकर हुआ कि एनआरसी होगा एनआरसी होगा, लेकिन जैसे ही लोग सड़क पे उतरे हुआ कि भाई एनआरसी के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है। तो क्यों लोग सड़क पे उतरे, लोगों ने प्रेशर बनाया, बहुत सारे उसमें संगठन शामिल हुए, या ठीक है संगठन नहीं शामिल हुए, लोग शामिल हुए, लेकिन दे वर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप, दे वर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू कंसीड देयर डिमांड्स एंड द गवर्नमेंट कंसीडर देयर डिमांड्स टू सम एक्सटेंट। अब आते हैं मूवमेंट्स को लेकर। मूवमेंट्स क्या है, तो जरा मूवमेंट्स को समझेंगे, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए मूवमेंट जो है उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए मूवमेंट होता है। और मूवमेंट जो है, ज्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं दे आर टेम्पोररी इन द सेंस उनका एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, मूवमेंट खत्म। इंटरेस्ट ग्रुप या सेक्शन या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनका वैसा नहीं है, वो हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज को उठाते हैं। ठीक है, या इंटरेस्ट तो आदमी का ऐसा तो नहीं ना है कि 10 बरस में मेरा जो हित है वो खत्म हो जाएगा। हितों की रक्षा के लिए तो यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। ठीक है, अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए मूवमेंट का एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, असम में वहां पे आंदोलन चला कि यहाँ पे जो भी बाहरी लोग हैं जो बांग्लादेश से आके बसे हुए हैं उनको हम भगाना है, जो घुसपैठी आके बसे हुए हैं उनको हमको भगाना है। इसके लिए वहां पे आंदोलन चला, बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। उसी आंदोलन से एक पार्टी निकली, पार्टी का नाम असम गण परिषद, जिसका जो सीएम हुआ प्रफुल्ल कुमार महंता, वो वहां पे सीएम भी बना, बाद में हटा दिया गया कि भाई सबसे कम उम्र का वो उम्र से पहले ही सीएम बन गया, तो इसको लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। तो वो मूवमेंट चला हटाने के लिए, राजीव गांधी के साथ असम गण परिषद के लोग बैठे, समझौता हुआ कि यहाँ पे जो ये 1971 के पहले जो आए हुए हैं के बाद जो आए हुए हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो उसका अंग्रेजी में उसका नाम है असम अकॉर्ड। तो एक मूवमेंट था कि भाई सरकार के साथ समझौता हो जाए कि जो स्टेट के बाद बाहर आए उनको हटा देना है। मूवमेंट हुआ, मूवमेंट जो है खत्म हो गया। उसी प्रकार तेलंगाना बनाने को लेकर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था पहले, आंध्र प्रदेश के बंटवारा से तेलंगाना निकला। वहां के जो नेता है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एकदम आंदोलन छेड़ रखा था कि नहीं हमको तेलंगाना को अलग करना है, क्योंकि हमारा उतना विकास नहीं हो पाया है जितना आंध्र प्रदेश का हुआ है। तो ये चला, जैसे ही ये आपको पूरा हो गया, ये मांग सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया, तुरंत आंदोलन खत्म हो गया। तो मूवमेंट आंदोलन होता है और ज्यादातर आंदोलन के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के बाद पूरे होने के बाद वो आंदोलन बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, नदी के पानी को लेकर, डैम्स वाले को लेकर। इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पटकर ने इसे चालू किया। तो मेधा पटकर ने जब इसे चालू किया तो ये था कि नर्मदा नदी पे बांध नहीं बनाया जाए, बांध बनाने की वजह से बहुत सारे जो हैं उसमें बहुत सारे गांव डूब जाएंगे, वहां के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बेघर होना पड़ेगा। ठीक है, सभी को शायद हो सकता है मुआवजा नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लाल फीता सही, रेड टेपिज्म। तो इसके कारण क्या है कि इसके कारण जो है सो उसके कारण वो आंदोलन चला। और बाद में क्या हुआ कि वो जो आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो उसमें शामिल हुआ कि नहीं पूरे भारत में भी हमको कहीं पे डैम नहीं बनने देना है, क्योंकि डैम बनेगा तो उसमें ज्यादातर जो ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल हैं, वो सबमर्ज हो जाते हैं। तो मूवमेंट भी दो टाइप के हैं, लेकिन ज्यादातर मूवमेंट 90% ऑफ द मूवमेंट्स they have a single purpose. When their purpose is fulfilled, the movement is dispersed, it is disbanded. ठीक है, या उससे कोई पार्टी निकल के बन जाती है, मूवमेंट खत्म हो जाता है उनका जैसे ही पर्पस। कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जिनके मुद्दे जो हैं वो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।